So hi, welcome to the class. Friends, in the last two videos, I discussed the problems which were asked in the CSI NET 2020 June recent examination from physics part, and we discussed many problems with solution and so what will be the answers if the questions were correct. Okay, so today again I have taken some of the problems and I will try to solve here. So let's see the problems. If the problems are correct, then the solution will be like this. So these are all memory based questions. So once you get the question paper, and then you can check it out. So directly let's move to the solution. तो ये क्वेश्चन था कि that question this question was asked from the mathematical physics, and from to find out the approximate integral values. तो ये था आपका कि if the integral I equal to 5/16, then using trapezoidal rule find the value of a, and the table is given here. Okay, so you know that to find out the integral, there are many rules like trapezoidal rule, like Simpson 1/3 rule, Simpson 3/8 rule. Those are the approximate. This will give you the approximate value or not the exact value of an integral. Okay, so ये था आपका एक approximate find करने के लिए. Okay, now if you look at the table here it is given x. Okay, x given, and the values of x are given 0, 0.5, then 1, 1.5. So and the corresponding fx value, fx means this is value of y is equal to fx. These are the values of y. Okay, so here the function is not given for which we have to find out the integral, that is not given. So the function is not given, and the tabulated values are given 1, 0, a and minus 5/4, and you have to find out the value of a. The integral, already the integral value is given, so this data is missing here. So this data is missing here. So this a value we have to find out. Okay, the very simplest question. You know that for finding the integral of a using trapezoidal rule, the equations is the integral formula is I equal to h upon 2 that y naught plus y1 plus y naught plus, this will be just like this. So if you want to remember, y naught plus y1, then y1 plus y2, then y2 plus y3. So how many data points are there? First you have to find out. So if I say these are the y values, no, if I say this is corresponding to x equal to 0, this value is suppose y0, and this value is y1, and this value is y2, and this value is y3. So up to y3 we have to put, starting from y0, then we will repeat one by one. जैसे कि आपने देखा है y0 plus y1, y1 plus y2, y2 plus y3. उसके बाद नहीं होगा क्योंकि y3 के बाद वैल्यूज गिवन नहीं है. Okay, so if I rearrange these things, because y0 two times is repeated here, y1 two times repeated here, and y2 also two times repeated here. देखो तो y0 plus 2 of इसको मैं कॉमन ले लिया और y3. बात है कि h का वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, बट h वैल्यू वी कैन फाइंड आउट हाउ. इन ट्रेपेजोइडल जब आप वो इसका थ्योरेटिकल पार्ट अब डिस्कस करेंगे, तो ट्रेपेजोइडल रूल में क्या होता है कि x i जो होता है x नॉट प्लस i h. ये जो i है ये आपका है, ये जो विथ का सेम विथ का जो यहां से यहां तक एक होगा ये और एक होगा ये, तो इन दोनों का भीतर जो विथ है, इन दोनों का भीतर जो विथ है, इन दोनों का भीतर जो विथ है वो है, और ये विथ क्या है, बराबर है, सेम है. सो इफ आई पुट हियर x इक्वल टू 1, आई मीन i इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x नॉट प्लस 1 इंटू h. तो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से दैट h इक्वल टू x1 माइनस x नॉट. तो ये बताता है अगर ये आपका मान लो कि ये पॉइंट x0 है और ये पॉइंट x1 है,
तो इनके भीतर विथ कितना होगा, दैट इज गिवन बाय x1 माइनस x0, यही है। तो एज वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो दिस ऑल आर वाई वैल्यूज। अगर इसको मैं क्या मानूंगा, ये x0 मानूंगा, ये x1 मानूंगा, ये x2 मानूंगा, ये x3 मानूंगा। ओके, तो अब देखिए x1 माइनस x0, सो 0.5 माइनस 0, तो योर 0.5 माइनस 0 विल बी 0.5, तो विच बराबर होगा। अगर 1 से x2 माइनस x1 करेंगे फिर भी यू विल गेट 0.5, x3 माइनस x2 करेंगे फिर भी यू विल गेट 0.5, ठीक है। सो योर एज वैल्यू वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, दैट विल कम आउट एज 0.5 डिवाइडेड बाय 2, एंड y नॉट वैल्यू इज 1 if I put here 2 and multiplied by 2, what is the value of y1? 0 here, and y2 का वैल्यू वही हमें फाइंड करना है। इट इज वैल्यू यहाँ पर गिवन है a है, और y3 का वैल्यू माइनस 5/4। सो देन फर्स्ट हमारा इंटीग्रल का वैल्यू जो वो ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 का मतलब क्या होता है, तो 1/2 हाफ होता है, तो अगर हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ तो कितना होगा 1/4, और यहाँ पर 1 और माइनस 5/4 इन दोनों का अगर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस 2a, ठीक है। अब देखिए यहां से एक 4 में घट, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 4 बार होगा, तो ये आ गया 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 2a। ओके, अगर ये 2 में इस तरह यहां पर रखूंगा तो मैं ये माइनस 1/4 इस तरह के लेके जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, 5/4 प्लस 1/4 दैट विल बी 6/4, और a इक्वल टू क्या होगा 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो इफ आई कैलकुलेट इट देन इट विल कम आउट एज 3/4। सो इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट देन दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है। हर बार एक ट्रापेजोइडल रूल से क्वेश्चन, या फिर न्यूटन रैप्सन मेथड से, या फिर सिम्पसन 3/8, सिम्पसन 1/3 रूल से, या फिर रंगागुप्ता सेकेंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर मेथड से एक ना एक क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो सो वो क्वेश्चन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ विल मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एक अनदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स। तो वहां से एक क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड पूछा है ये क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, लाइक लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपने पढ़ा होगा अगर, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला निकाल के दें, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, जो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको पूछा है कि इफ द बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन, द बाइंडिंग सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला इज गिवन हियर, ठीक है। तो a1 a माइनस a2 a टू द पावर 2/3 माइनस a3 z स्क्वायर a टू द पावर माइनस 1/3 माइनस a4 a माइनस 2z स्क्वायर a टू द पावर -1। यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, जो जैसे कि आपने पढ़ा होगा उसमें एक करेक्शन टर्म होता है ना। तो एक प्लस माइनस दे के डेल अपॉन a टू द पावर 3/4, वो करेक्शन टर्म यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर गिवन नहीं है। तो वो करेक्शन टर्म हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो करेक्शन टर्म कब आता है, जब हम इवन न्यूक्लियर कहते हैं या फिर ऑड इवन न्यूक्लियर कहते हैं, तो उस सिचुएशन में वो टर्म हम यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें इवन न्यूक्लियर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो देखिए ये हर टर्म का इसको पहले तो थोड़ा जो जानना मैं आइडिया दे रहा हूँ। ये हर टर्म का a1, ये जो कोफिशिएंट, ये जो a है, कैपिटल A है, these are the मास नंबर, और ये जो z है, जहां पर आपको z दिखाई देगा, ये थे एटॉमिक नंबर। आपको क्वेश्चन पूछा है कि इफ a3/a4 these are the constant, ठीक है। ये इसका वैल्यू 30 गिवन है, फाइंड द एटॉमिक नंबर फॉर मोस्ट स्टेबल स्टेट। यही अगर क्वेश्चन अगर पूछा है आपको, दैट मींस एटॉमिक नंबर निकालना है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के लिए, आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। अगर ये क्वेश्चन यही है
देखिए ये जो A1 है ये करस्पॉन्डिंग किससे करस्पॉन्ड करता है, तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये वॉल्यूम एनर्जी के साथ रिलेट करता है। तो जो स्मॉल A2 इसको 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 सरफेस के साथ रिलेट करता है। जो स्मॉल A3 ये रिलेट करता है आपका जो रिपल्शन है उसके ऊपर से रिलेट करता है। जो A4 ये सिमेट्री के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्शन टर्म ऑड इवन या इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए उसको हटा दिया। हमारा जो है काम है इन्हीं को लेके इसको स्टेबल मोस्ट स्टेबल मतलब न्यूक्लियस के लिए एटॉमिक नंबर निकालना है। तो जब मोस्ट स्टेबल के लिए न्यूक्लियस के लिए एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे या फिर जेड फाइंड करेंगे, उस वाले केस में आपको जो ये बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी को you have to differentiate with respect to z and you have to make it equal to 0। ठीक है, तो ये अगर 0 डेल बी बाई डेल जेड इक्वल 0 पुट करेंगे तो डेल इसको अगर डेल बी बाई डेल जेड करेंगे तो यहाँ पर तो कोई जेड टर्म नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 कंट्रीब्यूशन होगा तो 0 पुट कर दिया। यहाँ पर भी कोई जेड टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये भी 0 हो गया। नाउ माइनस सॉरी यहाँ पर एक माइनस होगा, माइनस A3 यहाँ पर z स्क्वायर है तो 2z A3 a टू द पावर -1/3। यहाँ पर भी एक z है तो इसको अगर करेंगे डिफरेंशिएट तो आएगा क्या 2A4। फिर इसका डिफरेंशिएट कर लिया, फिर इसका इनर का जो और एक डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू z तो वो होगा -2 और a टू द पावर -1 दैट इक्वल टू 0। जस्ट कैलकुलेशन मैंने किया है, इस टर्म को मैंने यहाँ पर लिखा है और इस टर्म को मैंने ये -2 और 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये इक्वल टू 0 कर दिया है। ना अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इक्वल टू 0 है, तो मैंने अगर इसको मैं इस तरफ ले जाऊं, एक को राइट हैंड साइड में रखूं, एक को लेफ्ट हैंड साइड रख सकता हूं। तो अगर इसको मैं उस तरफ ले जाऊं फिर उसको पहले लिखूं मैं, ठीक है, तो ये प्लस में बन जाएगा और ये इस तरह बन जाएगा। तो यहां से देखिए हमें चाहिए क्या, जेड चाहिए, तो ये जेड a टू द पावर -1/3 यहां से ये जो है a -2z a टू द पावर -1, तो इसको मैंने इधर रख दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट आपको वो अरेंज करना है। तो जब अरेंज करेंगे ये 2 से 4 को दोगुना जाएगा, 2a4/a3 हो गया। नाउ a4/a3 का वैल्यू इट इज गिवन हियर 30, सो 2 into 30 = 60 एंड यू सी दैट ये जो a raised to the power -1 है, a to the power -1 है, ऊपर है a to the power -1/3, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे a to the power कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और दोनों का बेस सेम होगा तो ये आएगा क्या 1 - 1/3। 1 - 1/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है, तो वो 2/3 का मतलब a का पावर कितना आ गया 2/3 साथ मल्टीप्लाइड बाय z और नीचे क्या रह गया a - 2z ओनली, और उस a - 2z को ये 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें चाहिए z। और यहां से देखिए यहाँ पर एक z टर्म है, यहाँ पर एक z टर्म है, तो z टर्म को कॉमन ले लिया मैंने, तो a टू द पावर 2/3 इस टर्म को इधर लेके आओ तो प्लस होगा 120 = 60a, तो z = 60a डिवाइडेड बाय a टू द पावर 2/3 प्लस 120। तो ये हो गया बेसिकली आपका कि फॉर मोस्ट स्टेबल स्टेट के लिए अगर यही करेक्ट है, फॉर मोस्ट स्टेबल स्टेट के लिए ये वैल्यू करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन सही है तो उसका करेक्ट आंसर यही होगा। समटाइम ये जो a4/a3 इस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग दे सकते हैं, तो अगर इस कांस्टेंट का वैल्यू अगर 30 दिया है तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, z = एटॉमिक नंबर फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। तो ये बहुत ही एक करेक्ट बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स से आया है। तो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको ट्राई टू सॉल्व करते हैं।